પંકજ હેલો. હા હું કહું કે પેલું આગળની પીડીએફ જુઓ એમાં પેજ નંબર 22 પેજ નંબર 22 and sum number 28. ઓકે સર. If integration x raised to 5 into e raised to minus x square dx is equal to g of x into e raised to minus x square plus c, then g of minus 1 equal to what? So there are four options. Option A minus 1, option B minus 5 by 2, option C 1, and option D minus half. So these are four options and you have to reply which one is correct. This question asked in 10th April 2019 second shift in JEE. Rai, hello. Yes, sir. Yes, sir. हाँ આગળની પીડીએફ JEE વાળી મૂકી દે ને એમાં પેજ નંબર 22. पंकज वो राय रट्टा है ने राय कहाँ गया? पता नहीं सर. चलो तो वो सम में आगे बढ़े. आपके पास आयुषी, आपके पास वो मोबाइल में तो आ गया है ना? हाँ सर, फोन में तो आ गई. हाँ तो 28 सम नंबर ओपन कर, 22 पेज मिला? हाँ सर, रुको. हाँ तो इसमें जो दिया गया है ना लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन आई बराबर करके x रेस टू 5 इंटू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स. There Yes. we suppose for minus x square, we put minus x square equal to t. So what derivative of minus x square? Minus 2x dx, and right side, other side we have dt. So we therefore say x dx equal to
minus half dt. So you see that x raised to 5 into e raised to minus x square dx. And we suppose for minus x square equal to t. Barabar? And therefore we get x dx minus half dt. So what we have x raised to 5, we split x raised to 4 into x. And joint with dx, so x dx we put minus half dt, and x raised to 4, that you take square of minus x square, that gives x raised to 4 equal to t square. Means integration now become t square into e raised to t and minus half dt. Agreed? Yes, sir. The minus half we put outside, and integration t square into e raised to t dt. This is result. Now we set our t square so as we can use formula of f of x plus f dash x into e raised to t. Its integral, fx into e raised to x. So Yes, sir. for that purpose, t square we set this way. T square, then I write minus 2t plus 2 in one bracket. And in second bracket, what I write extra term minus 2t plus t, we write opposite term 2t minus 2. So they can be cancel and you get again t square. Follow it. Hmm. Uh, Yes, but sir. actually your t square minus 2t plus 2 is f of t. It is function of t. And Yes. what 2t minus 2 is derivative of ft. Look at Yes. t square derivative 2t and minus 2t derivative minus 2. So therefore it is structure like ft plus f dash t into e raised to t dt. And Yes. we know where ft is t square minus 2t plus 2. So what answer? Already outside minus half as it is, and your integral answer f of t into e raised to t plus c, where Huh. f of t we write down value t square minus 2t minus plus 2 into e raised to t. And Yes. then we put value of t, what we supposing t for minus x square. So we write down t value again minus x square. So what in the first bracket, t square become my x minus x square square, that is x4. Then you have minus 2t, there minus 2 and t minus x square, so become plus twice x square plus 2, bracket complete, and e raised to t is now e raised to minus x square plus c. So this is your integral answer. Yes. But in the data, but you compare with answer with your data. In your data, answer given g of x into e raised to minus x square. So if you compare carefully, then what g of x, we can immediately say g of x is minus half into bracket x raised to 4 plus 2x square plus 2. Agreed? Yes, sir. And our interest to find value of g minus 1. So we Hmm. put x is minus 1 on both the sides. So left hand side g minus 1 and right hand side minus half, and in the bracket minus 1 to the power 4 plus 1 plus 2x square. So that is plus 2 and plus 2. It means minus 5 by 2. So this Yes. is correct option B. રાઈને ફોન કરને રાઈ ક્યાં ચાલી ગયો પાછો આવેલો તો ને સર ખબર આયુષી નહીં. હા, સર. જરા ફોન કરતો રાઈને ને કે પેલું પીડીએફ મૂકવાની છે કાં ફાફા મારે છે સર એની પાસે એમ કે છે લેપટોપ નથી એટલે નહીં મુકાશે. બગડી ગયું છે. બગડી ગયું પછી તારા પાસે નથી લેપટોપ ના સર. બધા મોબાઈલ પર જ ભણવાના છે પછી પંકજ પંકજ વાઈફાઈ Wi-Fi. નથી. હે વાઈફાઈ નથી. તો ડેટા મોબાઈલ નો યુઝ કરને ડેટા તો હોય ને તારી પાસે ડેટામાં તો મૂકતો ખરો તો થોડુંક તો ચાલે કે નહીં હે નો થાય ડેટામાં બહુ કન્ઝ્યુમ થાય આમાં શું કન્ઝ્યુમ થાય અલા ખાલી 1.5 કલાકમાં આપણે ખાલી 50 કે બસ હા 57 જેવી MB વપરાય છે એમાં શું વિચારવાનું
બહુ કઈ પેક છે જવાનું નથી હે 500 MB માં 500 MB નો જ પેક છે એટલે હા તો આપણે કેટલો જોઈએ 57 તો MB જોઈએ અંદર એટલે પટી જશે તો નક્કી થવાનું તો થાને એવું છે રાજ શું કરે છે રાજ પાસે છે કે નહીં કે સેટિંગ હા સર રાજ આપણે આપણા આન્સર કહીએ મેં ફોન કરું છું સર તમને પછી પેલા આ રીતે મને મને વાંધો નથી હું તો બોલતો જઈશ તમને અંદર મોબાઈલમાં ખબર પડવી જોઈએ આ તો સ્ક્રીન પર હોય તો તમે ફટાકને જોઈ શકો ને બરાબર સર ઉપર હાથ મૂકો હા એ વધારે યુઝફુલ થાય એ મૂકવાનું થોડું અટપટું છે એટલે મને મગજમાં નથી જતું એટલે હું નથી મૂકતો તમે સેટ કરી શકો છો એટલે રાય તો રાજ છોડ્યું રાજ ક્યાં ગયા હવે 29 નંબર સમજીએ બીજું શું બરાબર જો ધ ઇન્ટિગ્રેશન 2x³ -1 upon x⁴ plus x dx 2x -1 upon x4 plus x dx is equal to you have 4 options and we have to find any one option as a true and it is asked in 12th April 2019 shift number 1 યસ સર look at your integration 2x³ -1 now obviously see x4 plus x denominator look there is x common so x³ +1 હા સર so it means we separately divide both the term upper one. So 2x³ upon x into x³ +1. So 1x cancel cube. So it become x². યસ સર 2x³ ની જગ્યા મેં શું લખ્યું છે વાંચજો 3x². ટૂંકમાં x² રહી છે અને x³ +1 and સેકન્ડમાં શું કર્યું -1 કેવી રીતે કર્યો હશે વિચારો what 2x³ I write 3x³ પછી -x³ -1 ऐसा होगा हो सकता है ना 2x³ की जगह 3x³ पहले लिखो तो एक x³ कट करना पड़ेगा 3x³ -x³ -1 होगा तो Yes. 3x³ को डिवाइड करोगे तो एक x कैंसल होने से 3x² by x³ +1 होता है और जो -x³ -1 बचा है उसमें से माइनस कॉमन निकाल दो तो माइनस करके ब्रैकेट में उसको डिवाइड करो x इंटू x³ +1 तो x³ +1 कट हो जाएगा तो होगा क्या -1/x अब दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो आ जाता है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बोलो x³ +1 का 3x² है ना ऊपर और सेकंड टर्म में भी x का डेरिवेटिव 1 है तो दोनों का आंसर log ऑफ पहले का mod x³ +1 माइनस log mod x यानी के क्वेश्चन फॉर्म में लिखो तो log ऑफ mod x³ +1/x + c तो ये ऑप्शन सी दिया ही है यस सिंपल सम है ये सिर्फ वो 2x³ -1 को रीअरेंज करना है 2x³ को पहले मैंने 3x³ लिखा बाद में -x³ -1 लिखा तो 3x³ અને फिर से मैंने डिवाइड किया तो एक x कट हो जाता है तो 3x² by x³ +1 और दूसरी टर्म बची वो माइनस कॉमन निकाल के x³ +1 बचेगी और डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो x³ +1 एक कट हो जाएगा वहां -1/x होगा फिर बहुत सिंपल हो गया डिनोमिनेटर का ही डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो इसीलिए log ऑफ mod x³ +1 माइनस log ऑफ mod x हुआ +c तो इसीलिए log x³ +1/x समझ में आया पंकज यस सर हाँ तो यस नो बोलते रहो आप बंद करके बैठा मत रहो जैसे आयुषी बोलती है ना वैसे आप भी बोलते रहो चलो 30 नंबर का सम
हाँ, इफ इंटीग्रेशन 0 से π/2, ऊपर cot x है, नीचे cot x प्लस cosec x है, उसका आंसर उसने दिया है m इंटू ब्रैकेट पाई प्लस एन, देन m इंटू एन इज इक्वल टू एम एन, m इंटू एन એટલે पहले m और n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बाद में प्रोडक्ट कर देंगे। हाँ सर। मतलब कि जो सॉल्व करोगे ना लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रेशन टर्म, इसमें m इंटू पाई प्लस एन इसी टाइप का ही आंसर आएगा, तो इसमें से m और n कौन नंबर है वो निकाल देंगे, तो आंसर हो जाएगा अपना। बराबर। देखो कैसे सॉल्व करता हूं मैं वो समझ लो। cot x बाई cot x प्लस cos x है, तो cot x को हम लिखें cos बाई साइन, cos x अपॉन साइन x। डिनोमिनेटर में भी cot x की जगह cos x बाई साइन x, एंड वो cosec x 1 बाई साइन x। तो नीचे साइन एक्स एलसीएम है, ऊपर भी cos बाई साइन का साइन कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वही लिखा है मैंने, cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ऐसा बचा है। हाँ देख सर। लो बराबर। हाँ, cos x अपॉन 1 प्लस cos x, एंड इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से π/2। अब फॉर्मूला के हिसाब से मैं आगे बढ़ता हूं। आपको पता है फॉर्मूला 1 प्लस cos x की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस cos x, अंदर भी देख के बोल सकते हैं आप, 2 cos स्क्वायर x/2। यस। तो ऊपर जो 1,00,000 cos x लिखा है, तो उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। याद रखो फॉर्मूला है 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। तो cos x की जगह हम लिखना चाहे तो 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 लिख सकते हैं, और यस। डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर x/2। अब सेपरेटली डिवाइड करो, तो पहला टर्म 1 हो गया, एंड दूसरा टर्म हाफ सेक्स स्क्वायर x/2 हुआ। देख लो। हाँ सर। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x, एंड हाफ सेक्स स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन 10x/2। आपके पास मोबाइल में दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर, कोई लोग 29 पेज नंबर। हाँ, पेज नंबर 23 पे ये 30 नंबर चल रहा है। बराबर है, x माइनस 10x/2 उसका इंटीग्रेशन आएगा। अब मैं लिमिट लिखने जाता हूँ 0 से π/2, तो पहले अपर लिमिट लिखो। अपर लिमिट π/2 रखने से क्या होगा, π/2 माइनस 10 π/4 ऐसा होगा। फिर माइनस लोअर लिमिट 0 रखे, तो 0 माइनस 10 0 यानी 0, 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा। अब हुआ 2 माइनस 10 π/4 1, यानी कि π/2 माइनस 1 हुआ। अब अपना जो दिया था आंसर डेटा में वो पढ़ो बराबर। उसने लिया था m इंटू पाई प्लस 1, तो मतलब π/2 नहीं चाहिए हमको, तो इसका मतलब हाफ कॉमन निकाल दो। हाफ कॉमन निकालने से क्या होगा, हाफ इंटू पाई माइनस 2 ऐसा होगा कि नहीं, बोलो। π/2 माइनस 1 तक तो आ गए ना बच्चे, तो अब हाफ निकाल दो ना कॉमन, तो अंदर पाई माइनस 2 होगा। बस बिल्कुल यही आंसर उसने दिया है, लेकिन एम एन एन के फॉर्म में। तो कंपेयर करो और एम और एन की वैल्यू डिसाइड करो। पंकज, कंपैरिजन से क्या एम और एन आएगा, बोलो। कहाँ गया पंकज? अंदर तो है। लेकिन बंद करके बैठे रहते हैं, बस टाइम पास करते हैं, ऐसा थोड़ा चलेगा भाई। आप डिसाइड करो भाई एम और एन की वैल्यू क्या होगी। आंसर दिया है एम इंटू पाई प्लस एन, और हमने लाया है हाफ इंटू पाई माइनस 2। अब तो कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं? इसमें एम क्या होगा, एन क्या होगा, वो आपको सोचना है। यस, एक मिनट। बहुत डब्बे लड़के हैं आप लोग, कुछ करते नहीं, समझते भी नहीं जल्दी, और स्क्रीन पे रखना है तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज निकाल देते हैं। एम की वैल्यू हाफ है, अंदर दिखाई रही है कि भाई हाफ इंटू पाई माइनस 2 है, वो एम इंटू पाई प्लस एन है। जरा पेज पे लिखो, आपको लिखवाना पड़ेगा तभी आप लिखोगे। मोबाइल में भी ना अच्छी तरह से देखते हैं और कंपेयर करते हैं।
उसने आंसर दिया है m इंटू पाई प्लस एन, ऐसा पहला लिख दो m इंटू पाई प्लस एन, और दूसरी साइड पे उसकी जगह जो हमारा आंसर आया वो लिखो हाफ इंटू पाई माइनस टू। अब तो आप दोनों को देख के बोल सकते हैं कि नहीं m की जगह क्या है और n की जगह क्या है, वो भी मुझको बताना पड़ेगा। हाँ एंड टाइम की जगह हाफ है मित्रा सर। नेम हाफ કલાક થઈ ગયો તમારી હારે, બોલો બંને જણા એવા નંગ છે, એમ કેમ કરો? m बराबर सीधું દેખાય છે हाफ અને n बराबर -2। -2 तो ऐसी तरह से वैल्यू निकाल के अब प्रोडक्ट करना है m इंटू एन। तो m इंटू एन की मतलब हाफ इंटू -2, 2 कट हो जाएगा तो -1 हो गया क्या नहीं आंसर? भाई करेक्ट ऑप्शन ये है। इतना सिंपल सम को भी आप नहीं समझ सकते तो कैसे करेंगे हम? भाई बराबर ध्यान रखो तभी आ जाएगा। आप सोचो जरा के अंदर कैसे करना है। चलो अब 24 पेज वाला सम देखो। 31 नंबर, सम नंबर 31। अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बी द फिक्स नंबर। इफ द इंटीग्रल करके उसने इंटीग्रेशन दिया है 10x प्लस 10 अल्फा अपॉन 10x माइनस 10 अल्फा dx। इसका आंसर उसने जो दिया है वो देखो, ए ब्रैकेट में x इंटू कॉस 2 अल्फा, मतलब ए इंटू एक्स इंटू कॉस 2 अल्फा, अथवा तो ए ऑफ एक्स એટલે फंक्शन ऑफ एक्स जैसे लिखते हैं ना, तो ए ऑफ एक्स इंटू कॉस 2 अल्फा प्लस बी ऑफ एक्स इंटू साइन 2 अल्फा प्लस सी। then functions a of x plus b and b of x are respectively। तो दो चार ऑप्शन है, चार में से सिलेक्ट करना है। जरा ठीक तरह से पढ़ो प्रश्न। अच्छा હું કહું છું તને કે આ સ્ક્રીન પર આપણે મૂકવું છે એ બધું આપણે નથી આવડતું ને, મને મારે બી એ જ તકલીફ પડે છે, યાદ નથી રહેતો, 4-5 જગ્યાએ ઘૂમવું પડે। આ તો તમે તમારા મોબાઈલમાં ફોટો એ પાડીને તો મોકલી દીધું, એ એ તો એ લોકો લોકો મોકલી દીધું, એ લોકો બધા વારંવાર મૂકે છે। હા. આજે કોઈનો વાઈફાઈ નથી ને પેલો એક આવ્યો નથી, આવું બધું છે ને પેલી છોકરીને મારી જેમ આવડતું નથી એવું છે। આયુષી ને એવું છે, પેલો રાજ વાળો છે એક, તેને તો મોબાઈલ હો બંધ રહી, એને તો બધા સ્વિચ ઓફ જ કરીને બેસી જતો છે। એમાંથી શેરિંગનો કોઈ કામ આમાંથી શેર કરી નાખ્યું, મારા મોબાઈલમાં પણ છે, પણ મારે સ્ક્રીન પર લાવવું હોય ને આમાંથી, તો એ ઓપ્શન નથી। લેપટોપ પર હું પણ એને નથી કરાવ્યું, મોબાઈલ પર કરવાનું, મોબાઈલ પર આપણે બધું સેટ થઈ જાય। ओके तो नाउ वी स्टार्ट सॉल्यूशन। पढ़ लिया आप लोगों ने? आयुषी, पंकज, हाँ सर। राज को तो पूछने का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो लिखता भी नहीं, पहले तो लिखता भी था वो भी बंद हो गया। यस सर ऐसा लिखता था, अभी वो भी नहीं लिख रहा है। और राय तो आया ही नहीं ने, राय एब्सेंट है आज, बराबर। हाँ चलो सर। तो वो इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले 10x प्लस 10 अल्फा बाई 10x माइनस 10 साइन बाई कॉस के फॉर्म में लिख दिया। देखो मान लो कि 10x को जरा अपने ढंग से सोचो, मैं यहां बोलूंगा तो खास आप सुनते रहोगे ऐसा नहीं है, आप भी सोचो कि 10x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, साइन बाई कॉस। 10 अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। बाद में एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया। तो जैसा मैंने लिखा वैसा आएगा कि नहीं? एक एक स्टेप नहीं लिखा जाता है भाई, ये 12th स्टैंडर्ड है और वो भी JEE वाले हैं आप लोग। तो यहां मैं ऐसा लिखूं कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, पर तो कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है ये बच्चा? ऐसा हो जाएगा, सामान्य है। बाद में तो एलसीएम निकाल दो तो ऊपर हो जाएगा साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, ऐसा समझ में आ जाना चाहिए। नीचे भी आ जाएगा साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा, आया समझ में? वो डिनोमिनेटर एलसीएम कट हो गया, ऊपर नीचे सेम आया इसीलिए। अब ऊपर वाली जो टर्म है वो फॉर्मूला बन गई साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा की, और डिनोमिनेटर वाली टर्म साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा की फॉर्मूला है। पता चला? अब इसी टाइप का सम आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में भी किया है। करना कुछ नहीं है, नीचे वाला x माइनस अल्फा है ऊपर सेट करो, तो x प्लस 2 अल्फा की जगह मैं लिखूंगा ऊपर x माइनस अल्फा, बाद में प्लस 2 अल्फा करके बैलेंस भी कर दूंगा। देख लो, तो हो गया ऊपर साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, यानी एज गुड एज साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा, एंड डिनोमिनेटर में तो साइन एक्स माइनस अल्फा है।
अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ऊपर वाला जो साइन x माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा है उसको मैं एक्सपांड कर देता हूं फॉर्मूला के हिसाब से। जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा का आप एक्सपांशन करते हैं ना, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, उसी तरह साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा एंड डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस अल्फा। अब दोनों को सेपरेट डिवाइड करो। तो पहला डिवीजन में होगा साइन एक्स माइनस अल्फा कट हो जाना है, हो जाएगा, मतलब कि कॉस 2 अल्फा आएगा। और दूसरी टर्म को जब डिवाइड करोगे तो साइन इंटू कॉट एक्स माइनस अल्फा होगा, कॉस एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा, इसीलिए कॉट ऑफ एक्स माइनस अल्फा होगा। अब दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन कर लो। अल्फा तो उसने बोला ही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला फिक्स नंबर है, यानी कि कांस्टेंट है, तो cos 2 अल्फा कांस्टेंट समझ के बाहर निकाल दो और इंटीग्रेशन 1 dx के बारे में सोचो, वो x है, तो इसीलिए cos 2 अल्फा इंटू एक्स। फिर दूसरी टर्म का इंटीग्रेशन निकालोगे तो उसमें sin 2 अल्फा कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दो, और cot x का जैसे इंटीग्रेशन करते हैं log ऑफ मॉड sin x, उसी टाइप cot ऑफ x माइनस अल्फा का इंटीग्रेशन log मॉड sin x माइनस अल्फा प्लस c। आया समझ में सबको? हाँ सर। सर पेज नंबर बोलो ना। यस पेज नंबर 24, 31 सम चल रहा है बिन, यस सर। 30। 31 सम नंबर 31, पेज नंबर 24। हाँ, अभी जो मैंने सॉल्यूशन जो लाया, मैं अभी नंबर 1 करके बताया, अगर आपके बुक वो होगा पीडीएफ लगाई होगी तो उसमें ये नंबर दिखाई देगा, नंबर 1 करके बताया। ये हम लोगों ने लाया वो आंसर है, और उसने जो दिया है उसके साथ कंपेयर करके बोलना है कि क्या ए एक्स की जगह है ना क्या बी एक्स की जगह है। जरा आप लोग कंपेयर करो, पहला आंसर देखो जो डेटा में दिया है वो राइट हैंड वाला सम, और जो हम लोगों ने यहाँ आंसर लाया है उसके साथ उसको कंपेयर करो और बताओ कि ए ऑफ एक्स की जगह यहाँ क्या है और बी ऑफ एक्स की जगह क्या है। बोल सकते हैं आप देख के कंपेयर करके, जैसे अगले सम में किया था वैसा ही कंपैरिजन करना है। बताओ ए एक्स क्या वैल्यू है? मैं पीडीएफ नहीं मिलती। सर एक्स एक्स है। हाँ, एंड बी ऑफ एक्स क्या है? लॉग लॉग मोड लॉग मॉड साइन एक्स माइनस अल्फा, बस ऐसा ही तो बोलना है। हो हम्म। गया, बराबर है। अब मोर ओवर 1 कैन बी री रिटन एज करके मैंने लिखा, क्या लिखा वो देख लो, एक्स माइनस अल्फा ऑफ इंटू कॉस्टल, मतलब कि एक्स की जगह एक्स नहीं रखा क्योंकि आंसर में एक्स दिया ही नहीं है, एक्स माइनस अल्फा बना दिया। और अल्फा बनाने से क्या फायदा होता है, एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा लिखूंगा ने तो एक्स कॉस 2 अल्फा तो आएगा, बाद में वो आपको एक्स्ट्रा टर्म दिखाई देगी वो माइनस अल्फा कॉस 2 अल्फा, लेकिन कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट में कांस्टेंट मच हो जाएगा तो फिर से सी ही आ जाएगा, तो इसीलिए उसको सेपरेट किया। और बाद में आप आंसर के साथ कंपेयर करोगे तो ऑफ एक्स क्या दिखाई देगा, एक्स माइनस अल्फा, एंड जो बी ऑफ एक्स है वो तो आपका सेम ही रहेगा, लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स माइनस अल्फा, ऐसा। तो ये बहुत बढ़िया है, उसने रीजन भी मैंने लिख दिया है क्यों ऐसा हुआ, तो माइनस अल्फा कॉस 2 अल्फा प्लस सी डैश का मतलब सी ही हुआ, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो आप ऐसा ही सोचने पड़ जाओगे कि ये तो आंसर दिया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स है, आप कंपैरिजन करोगे तो ये एक्स एक्स दिखाई देगा, लेकिन उसने दिया है एक्स माइनस अल्फा, तो ये लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट भी बच, कांस्टेंट में मच कर दो तो कांस्टेंट अनदर आएगा, अनदर कांस्टेंट हो जाएगा। आया समझ में अभी? यस सर। हाँ, अब 32 है वो 25 पेज है, वो लास्ट पीडीएफ जो दिया था मैंने उसका लास्ट यस पेज आ गया है 25, फिर आज की पीडीएफ काम में आएगी, बराबर है। चलो, तो जो लास्ट वाला सम है 22 ऑन पेज नंबर 25, ए वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट
इंटीग्रेशन फ्रॉम अल्फा टू अल्फा प्लस वन dx upon x plus alpha into another bracket x plus alpha plus 1 is equal to log 9 by 8 to the base e. Then question is, what value of alpha? Out of 4 options, which one correct? This question asked in 12th April 2019 second shift. तो देखो अब मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूं। जो दिया है इंटीग्रेशन वो सेम टू सेम लिख दिया। इंटीग्रेशन अल्फा टू अल्फा प्लस वन, अपर में dx, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर, 1 फैक्टर x प्लस अल्फा, सेकंड फैक्टर x प्लस अल्फा प्लस, एंड अदर साइड log 9/8 वो भी दिया ही है तो वो ही लिखना पड़ेगा। अब हुआ क्या, अब जो लेफ्ट साइड वाला इंटीग्रांड फंक्शन है ने उसको मैंने देखो कैसे लिखा। डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर है, एक में मैंने लिखा 1/x प्लस अल्फा, माइनस करके दूसरा में लिखा 1/x प्लस अल्फा प्लस वन। अपने आप सेट हो जाता है। देखो एलसीएम निकाल दो तो ऊपर 1 ही आएगा ना पंकज, सिंप्लीफाई। हाँ, x प्लस अल्फा कट हो जाएगा। अभी उन दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता है, बिकॉज अल्फा कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x1 એટલે log of mod x minus alpha ને ઉધર log of mod x plus alpha plus 1 and in between limit alpha to alpha plus 1। अब quotient rule of log अप्लाई करो तो log of mod x plus i x plus alpha plus 1 आया। यस सर। और लिमिट फ्रॉम अल्फा टू अल्फा प्लस 1 एंड इक्वल टू log 9/8 टू द बेस ई। अब पहला नंबर अपर लिमिट लिख देते हैं x की जगह, तो क्या होगा बोलो जरा, चेक करो और बोलते जाओ। मैं x की जगह अल्फा प्लस 1 लिखूं तो क्या होगा, log ऑफ अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा એટલે 2 अल्फा प्लस 1 है कि नहीं पेज आपके पास। 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन हाँ, नीचे क्या आएगा, अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 हो जाएगा। हाँ, अब माइनस करके मैं लोअर लिमिट लिखूं तो क्या होगा बोलो, log ऑफ 2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा प्लस 1 बराबर एंड अदर साइड log 9/8। ऐसा आंसर देते जाओ तो मजा भी आएगी आपको। चलो अब क्वेश्चन टूल लगाना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों लॉग के बीच में माइनस साइन है। तो 2 अल्फा प्लस 1/2 अल्फा प्लस 2 इनटू करके रिवर्स मीन्स रेसिप्रोकल फॉर्म में प्रोडक्ट करो तो ऊपर 2 अल्फा प्लस 1 आएगा तो दूसरा 2 अल्फा प्लस 1 हो गया तो स्क्वायर होगा एंड डिनोमिनेटर में 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस। बस और दोनों साइड पे लॉग है, लॉग इज 1 फंक्शन है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए लॉग दोनों साइड से कैंसल करके हम सिर्फ नंबर ही ले लेंगे। 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय डिनोमिनेटर मैंने 2 कॉमन निकाल दिया है 2 अल्फा प्लस 2 से, तो वो बाहर 4 अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 हो गया इक्वल टू 9/8। अब ध्यान से देखो तो ये 8 लेफ्ट साइड पे ले लेता हूँ, राइट हैंड वाला जो 9/8 है ना उसका 8 में क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे ले। हाँ, 4 2 जा 8 होता है ना, 4 2 जा 8 तो ऊपर 2 होगा तो 2 के साथ 2 अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर आएगा और उधर 9 के साथ अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। 4 तो गायब हो गया, 4 को ढूंढना मत अभी। चलो हाँ, अब वो होल एक्सपांशन करो दिमाग में और बाहर वाला 2 प्रोडक्ट में लेते जाओ तो 2 अल्फा का स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर एंड बाहर वाला 2 ज्वाइंट कर लो तो 8 अल्फा स्क्वायर। मिडल में भी मिडल टर्म भी 2 2 जा 4 अल्फा होता है, बाहर वाला 2 ज्वाइंट करो तो 8 अल्फा, फिर 1 का स्क्वायर 1 एंड बाहर वाला 2 ज्वाइंट करो तो 2 एंड अदर साइड ऐसा ही प्रोडक्ट कर लो तो 9 अल्फा इंटू अल्फा 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा। अब सब टर्म एक साइड पे कलेक्ट कर लेते हैं। 9 अल्फा स्क्वायर में से 8 अल्फा स्क्वायर निकाल लो तो अल्फा स्क्वायर हो गया, फिर 9 अल्फा में से 8 अल्फा निकाला तो अल्फा हो गया एंड प्लस 2 जाता है तो -2 इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -2 बराबर 0 आया। उसका 2 फैक्टर पड़ेगा, 2 फैक्टर। कौन सा फैक्टर, एक अल्फा प्लस 2 एक अल्फा -1। अल्फा में से -2 और अल्फा बराबर 1 वैल्यू आएगी। अभी इसने आंसर में सिर्फ -2 दिया है, देख लो।
तो वो करेक्ट ऑप्शन बी लिखा जाएगा। समझे आप? यस सर। अब हाँ, अब जो मैं आज पीडीएफ भेजी थी वो लगाओ। राय आ गया? हेलो यस सर। राय? हाँ सर आ हाँ, गया है। राय देखाई छे आमा फोटोમાં? हाँ सर तो हूँ। वो जरा, हाँ तो सेकंड पीडीएफ लगा दो आज सर की जो मेरा भेजी है वो। मैं लगा नहीं पाऊंगा। अच्छा, नहीं है? हाँ। चलो कोई बात नहीं, तो मोबाइल में देखते जाओ। हाँ सर व्हाट्सएप हाँ पे देखा। हाँ सर। हाँ, सबके पास है ना, बराबर देखना। हाँ अभी सर। वो 33rd सम बहुत डेंजर दिख रहा होगा, आपने देखा होगा तो। देखो क्या लिखा है, फॉर एक्स स्क्वेयर नॉट इक्वल टू एन पाई प्लस वन। ये कंडीशन इसीलिए लिखा है कि फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में फंक्शन जो बाद में दिया है इंटीग्रेशन करके, इसमें साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन है। अगर एक्स स्क्वेयर की जगह एन पाई प्लस वन लिखा जाए तो वन कट हो जाएगा, तो साइन एन पाई जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरोस ऑफ साइन फंक्शन इज के पाई और एन पाई। तो इसीलिए वो कंडीशन लिखा है ना? आया यस समझ में सबको? अच्छा, यस तो ये कंडीशन के हेठर ये इंटीग्रेशन निकालना है। क्या इंटीग्रेशन, इंटीग्रांड फंक्शन दिया है एक्स इंटू करके बिग अंडर रूट है, ऊपर लिखा है टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस साइन ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, सेम वे इन डिनोमिनेटर बट इन बिटवीन प्लस साइन गिवन। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आपको जरा तकलीफ वाला दिखाई देगा, लेकिन मैं जरा सिंपल बना देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो एक्स लिखो ही ऐसा, फिर अंडर रूट करके जो टर्म है वो वही रखो। साइन टू थीटा की जो फॉर्मूला लिखते हैं ना आप, साइन टू थीटा याद है? थीटा। हाँ सर। हाँ, तो साइन टू थीटा आप क्या लिख सकते हो, रखोगे टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो उसी मुताबिक साइन ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो उसकी जगह टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसा ऊपर नीचे दोनों में साइन ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन की जगह लिख सकोगे। अब हुआ क्या, ऊपर भी टू साइन एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड डिनोमिनेटर में भी टू साइन एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉमन आता है, देख लो। तो वो कॉमन टर्म को कैंसिल कर लो। क्या करेंगे, कॉमन टर्म है, ऊपर भी आया, वो कॉमन निकाल दो, नीचे वाली भी कॉमन निकाल दो, तो वो बाकी क्या बचेगा। तो अगर वो कॉमन का निकाल के कैंसिल करोगे तो वो हो जाएगा वन माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना बराबर? डिनोमिनेटर में वन प्लस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन है। अब आप उसकी तो फॉर्मूला जानते हैं, वन माइनस कॉस थीटा क्या लिखते हैं, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ऐसा लिखते हो कि नहीं? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो इसी तरह कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन की जगह टू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू, एंड डिनोमिनेटर में टू कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू, ऐसा होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में वन प्लस है, वन प्लस कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ऐसा। अब फिर से टू कट हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर का मतलब टेन होगा, एंड रूट में टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू जो निकालोगे तो मॉड में टेन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू होगा। यहाँ लिमिट दिया ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉड का आप ओमिट कर सकते हैं। तो ये फंक्शन हुआ, एक्स बाहर है एज इट इज इंटू टेन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू डी एक्स। अब क्या करें आगे, अब एक्स स्क्वायर का ही तो डेरिवेटिव टू एक्स है, इसमें एक्स आता है बाहर देखो, तो वो एक्स का निकाल करने के लिए मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन करूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू की जगह टी सपोज कर लिया, अब उसका डेरिवेटिव सोचो, तो एक्स स्क्वायर बाई टू है, उसका डेरिवेटिव वन बाई टू इंटू टू एक्स, टू तो कट हो जाए एक्स डी एक्स, एंड बाद में हाफ है वन बाई टू, सेपरेट करके डेरिवेटिव करो तो वो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, इसीलिए तो एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा। तो जो अपना इंटीग्रेशन आई एक्स इंटू टेन एफ एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू है, वहां एक्स डी एक्स की जगह डी टी लिख दो, एंड टेन ऑफ जो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू है वो टेन टी हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन टेन टी तो आपको पता होना चाहिए कि लॉग मॉड सेक टी है, वही लिख दिया, फिर टी की वैल्यू लिखो,
तो log mod sec x स्क्वायर माइनस 1/2। कितना सिंपल सम है देखो। आ गया करेक्ट ऑप्शन ए, पता चला कि नहीं? अच्छा, हाँ सर। हाँ, बहुत सिंपल सिंपल सम है। अब आज की ही पीडीएफ में नेक्स्ट पेज आता है 27। इसमें 34 क्वेश्चन नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 34। हम्म, देखो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम। पूछा गया है इंटीग्रेशन 0 से पाई मॉड कॉसेक का क्यूब डीएक्स। बराबर ध्यान से सुनो, मॉड कॉसेक्स का क्यूब। अब yes, देखो मॉड वैल्यू है, पावर ऑड है, इवन होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव होता। लेकिन ये क्यूब है, ये ऑड पावर है, तो कभी मॉड कॉस एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, कभी वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जब वो पॉजिटिव होगा तो सिर्फ मॉड निकाल क्यूब लिखेंगे, अगर वो नेगेटिव होगा तो मॉड को निकाल के माइनस कॉस क्यूब एक्स लिखेंगे। तो ऐसा होता है यहाँ, क्यों होता है? 0 से पाई इंटरवल में फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट कवर होता है। इसमें yes, भी 0 से पाई/2 तक का फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसमें तो ऑल ट्रिगो फंक्शन पॉजिटिव है, तो अपना कॉस भी पॉजिटिव है। तो वहां जब हम लिमिट को ब्रेक करेंगे 0 से पाई की जगह 0 से पाई/2, तो मॉड कॉस एक्स लिखा जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो इसीलिए कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा। एंड इसके बाद जो पाई/2 का पाई इंटरवल होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट कवर करता है, वहां कॉस नेगेटिव वैल्यू होती है, इसीलिए पाई/2 टू पाई वहां क्या होगा? माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब। बट पावर क्यूब है इसलिए माइनस कॉस क्यूब एक्स होगा। बोलो बराबर समझ में आ गया? yes sir, सबको ध्यान में आया? पंकज राय। यस सर। हाँ, अब देखो पहला नंबर का हम इंटीग्रेशन करें। आपके पास है ना, स्क्रीन पे तो आ गया होगा ना मोबाइल के, तो बराबर देखते रहो। 0 से पाई/2 कॉस क्यूब एक्स का तो आप वो कॉस 3 थीटा वाली फॉर्मूला है ना, उसका यूज करके भी कर सकते हैं। मैंने वो नहीं किया क्योंकि ये लेंदी कौन करेगा। देखो यहां मैंने क्या ट्रिक लगा दी, कॉस क्यूब को कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स ऐसा लिख दिया, एंड कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वो लिख सकते हैं आप, इंटू कॉस एक्स डीएक्स। तो बोलो कॉस क्यूब एक्स जो लिखा बराबर है कि नहीं? 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डीएक्स। ठीक तरह बगल वाला जो सेकंड नंबर है उसमें भी ऐसा किया, बाहर माइनस साइन निकाल दी, इंटीग्रेशन पाई/2 टू पाई लिख दिया, लेकिन कॉस क्यूब एक्स का था वही तरीका, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। अब ऐसा क्यों लिखा ये आपको अभी मैं समझाता हूं, आगे बढ़ो तो पता चलेगा। 0 से पाई/2 का इंटीग्रेशन हो गया। अब ओपन करो ब्रैकेट, तो कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स होगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स ऐसा आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही सेकंड टर्म में माइनस करके पाई/2 टू पाई कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पता है आपको, क्या है कॉस एक्स का? बोलो जल्दी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स। साइन एक्स, तो साइन एक्स लिखेंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स एक्स। इसका कैसे लिखेंगे? तो कि साइन एक्स का डेरिवेटिव बगल में कॉस एक्स है, तो ये फंक्शन का एक इंटीग्रेशन का एक रूल है कि इंटीग्रेशन फंक्शन एफ एक्स रेज टू पावर एन एंड इनटू एफ डैश एक्स, एक्स का पावर एक बढ़ जाएगा n+1 एंड वही पावर नीचे आएगा। वो बहुत टाइम हम लोगों ने यूज किया है। तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स में साइन एक्स फंक्शन है, उसका ही डेरिवेटिव बाजू में है कॉस एक्स, तो साइन स्क्वायर का एक पावर बढ़ जाएगा तो साइन क्यूब x/3 आएगा बिटवीन 0 से पाई/2। समझ में आया सबको ये? यस सर। बराबर, हाँ, माइनस करके दूसरा भी सेम ही है तो सेम ही लिखा जाए, सिर्फ लिमिट बदला गई है। कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस साइन क्यूब x/3 वो लिमिट होगी पाई। चलो पहले अपर लिमिट हम लिखते हैं पहले वाले में, तो साइन पाई/2 लिखने से 1 माइनस 1³/3 साइन एक्स 1 है इसीलिए पाई/2 लिखने से, तो 1³ का मतलब 1 है, तो 1 माइनस 1 बाद में 0 लिखोगे तो 0 ही आने वाला है।
फिर माइनस करके ब्रैकेट में दूसरी वाली टर्म, अपर लिमिट में पाई लिखोगे तो साइन पाई 0 होता है, तो दोनों टर्म 0 हो जाएगा, वो लिखा ही नहीं है मैंने। फिर माइनस करके आपको लोअर लिमिट लिखनी पड़ेगी, तो माइनस करके ब्रैकेट में साइन पाई बाई 2 का 1 और फिर से -1/3। तो हुआ क्या, वो माइनस बाहर हो जाएगा तो प्लस 1 - 1/3 एंड 1 - 1/3 डबल हो गया, એટલે ट्वाइस ऑफ 1 - 1/3। 1 - 1/3 का मतलब 2/3, तो 4/3। ये करेक्ट ऑप्शन सी है। बोलो, हो गया? यस सर। यस सर। हाँ, अब उसको और तरीके से भी गिना सकते हैं। देखो, वो मैंने आपको सिम्पल दिया कि 0 से पाई होता तो 0 से π/2 के आगे कॉस पॉजिटिव होता है, π/2 से पाई में नेगेटिव होता है, तो दोनों को सेपरेट करके बता दिया। अब मैं कैसे आगे बढ़ू वो देखो। हियर fx बराबर मॉड cos x का क्यूब है। अब अपनी लिमिट 0 से पाई है, तो मैं सोचूं कि लेट अस चेक एफ ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है। तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स का मतलब मॉड कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स का क्यूब। अगर हम मॉड में कॉस पाई माइनस एक्स लिखे तो मॉड में माइनस कॉस एक्स का क्यूब। मॉड में माइनस साइन का कोई मतलब नहीं रहता है, तो वो कॉस क्यूब एक्स यानी एफ एक्स ही आया। तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हुआ। इसीलिए 0 से पाई कॉस एक्स का क्यूब डीएक्स में ऐसा लिख सकता हूं, ट्वाइस करके 0 to π/2 मॉड कॉस एक्स का क्यूब डीएक्स। अगर आपको याद हो तो वो इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स है, तो क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ 2 माइनस 2a माइनस एक्स डी एक्स। और इसमें भी जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एंड एफ एक्स इक्वल हो जाता है, तो 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स का मतलब ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स होता है। ये प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं हम। सब कुछ दिमाग में रखना पड़ता है भाई। अगर आप काम करना चाहो और अच्छी तरह से अच्छी ढंग से करना चाहो, तो उसका हर एक साइड आपको याद रहनी चाहिए, तभी ये कर सकोगे। फिर आप तो जब पढ़े बस याद रहा, फिर बाद में भूल नहीं चलने वाला। ऐसा रहोगे तो कुछ मार्क्स आने वाला नहीं है भाई। तो देखो मैंने क्या कर दिया, और मॉड कॉस एक्स की वैल्यू तो यहाँ कॉस क्यूब होगी, क्योंकि 0 से π/2 में मॉड कॉस एक्स पॉजिटिव ही है। फिर बाद में वही तरीका आजमाया, कॉस क्यूब का 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और बाद में कंप्लीट कर दिया, देख लो। लेकिन बाहर ट्वाइस करके शॉर्ट बना दिया एग्जाम्पल, उसमें आपको समझ ज्यादा पड़ती, इसीलिए मैंने पहला वही ट्रिक बताया है कि जो आपको दिमाग में है। और ये आइडिया फॉर्मूला से ली, जो आप नहीं याद रखते, हम याद रखते हैं, इसीलिए हम इसी फॉर्मूला से ही सॉल्व कर देते हैं। आपको टाइम लगेगा, मैं शॉर्ट में बता दूंगा। ये प्रश्न है, तो ये याद। चलो, हो गया? समझ में आया भाई कुछ मैं जो बोल रहा हूँ वो? यस सर। तो अब नया सम लेके आगे बढ़े। ओके सर। हाँ, एक मिनट है, मैं जरा पानी पी लूं। मेरा तो चार्जिंग भी देखना पड़ता है, कभी कभी वो भी गायब हो जाता है। हाँ, अब नंबर आया 35, 35th नंबर आया, समझा? बंद कर नहीं दो भाई, म्यूट करके मत बैठा रहो, नहीं तो इंडिविजुअल पूछना शुरू कर दूंगा मैं। नहीं साइड देखो, से। हाँ, एफ एक्स पर लिया है इंटीग्रेशन
5x⁸ plus 7x�6 whole upon x square plus 1 plus 2x�7 का होल स्क्वायर dx। ये तो आपके लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि इसी टाइप का हर एक टाइम सम कर गए हम। मैंने बोला ही था कि इसी टाइप का सम हर वक्त आता है, कोई कोई एग्जाम में नहीं दिखता है। बस x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, अब 0 बराबर 0 ये भी दिया है। वो तो c वैल्यू निकालनी पड़ती है ना कांस्टेंट, इसीलिए f0 बराबर 0 दिया है। इसके Yes. बाद आपको ढूंढना है वैल्यू ऑफ f1। सब इंटरेस्ट लो, बहुत सिंपल सम है। और 9 जनवरी 2019 में पूछा गया है, हाँ, शिफ्ट नंबर सेकंड में। अब इसमें कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन जो fx दिया है ना, fx बराबर इंटीग्रेशन, वो फिर से मैंने लिख दिया। सेम का आपको सेम। ट्रिक को पता है कि नीचे जो है, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर दिया है, तो उसमें हाईएस्ट पावर बाहर निकालना है। तो अंदर वाली टर्म देखो, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x�7, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, 7। तो x�7 को बाहर निकालते जाओ, होल स्क्वायर है तो x⁴ हो जाएगा बाहर। सब देख लो, राय समझ में आ रहा है। x⁴ बाहर हुआ और ब्रैकेट में बचा क्या, x�7 निकाला कॉमन तो डिवाइड करो, x² बाई x�7 तो 1/x⁵ प्लस 1/x�7 प्लस 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे जो x⁴ है वो ऊपर वाला टर्म्स को डिवाइड कर दो सेपरेटली। तो 5/x�6 होगा, x⁸8 नीचे x⁴ नीचे ले लाओ ना, 14 में से 8 जाता है तो कितना आता है, नहीं पता है। अरे नहीं सर, मैं पहले 5/x6 ऐसा सोचो, प्लस देखो 7x6 एंड डिनोमिनेटर में x18 है, तो 14 में से 6 कट कर लो तो 7/x⁸ हो जाएगा। और नीचे जो बाकी बची है ब्रैकेट वाली होल स्क्वायर टर्म, वो सेम होगी। बोल हो गया क्या नहीं। हाँ सर। अब हर टाइम पे, हर सम में, इस टाइप का सम में हर एक वक्त क्या होता है, नीचे का ही डेरिवेटिव ऊपर आ जाता है। तो यही इसमें भी है। अगर आपने सपोज कर लिया 1/x⁵ प्लस 1/x�7 प्लस 2 बराबर t, तो उसका डेरिवेटिव लिखोगे तो ऊपर वाली ही टर्म मिलती है। देखो 1/x⁵ का मतलब आप जानते हैं x⁻⁵ है, उसका डेरिवेटिव सोचो फॉर्मूला के हिसाब से, तो -5x⁻⁶ यानी -5/x आया क्या नहीं। अब दूसरी वाली टर्म देखो, x⁻⁷ है, का मतलब x⁻⁷, उसका डेरिवेटिव सोचो, तो -7x⁻⁸ यानी कि -7/x⁸, ब्रैकेट कंप्लीट dx बराबर dt। अब हाँ, अब वही टर्म ऊपर है, सिर्फ माइनस साइन नहीं है, है कि नहीं। तो माइनस, हाँ, माइनस साइन रख के माइनस बना दो, तो dt लिख सकेंगे नहीं, -dt ऊपर। हाँ हाँ, ने नीचे t पूरे का पूरा टर्म अंदर वाला t है, न स्क्वायर है तो t² होगा। तो क्या बोलो, अब माइनस बाहर निकाल दो, एंड इंटीग्रेशन 1/t² करना है, तो इंटीग्रेशन t⁻² सोचो। अभी इंटीग्रेशन की फॉर्म है, इंटीग्रेशन x⁻n हो तो हम x⁻n+1/n+1 लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन t⁻² है तो t⁻² + 1 अपन -2 + 1 ऐसा लिखा जाएगा। तो t⁻² + 1 का t⁻−1 हुआ, नीचे भी माइनस, तो -1/t हुआ। देखो मैंने लिखा है बाहर माइनस, फिर -1/t³ लिखा गया था मेरे ख्याल से, वो निकाल दिया है, -1/t, मतलब +1/t + c होगा आंसर। आंसर मतलब 1/t की वैल्यू लिख दो, 1/x⁵ प्लस 1/x⁷, फिर सिंप्लीफाई कर दिया, नीचे हाईएस्ट पावर एलसीएम आएगा x⁷, ऊपर चला जाएगा x⁷ एलसीएम, नीचे सेटिंग करके लिख दो क्या होगा, 2 के साथ x⁷ प्रोडक्ट होगा, तो पहला मैंने 2x⁷ कर दिया, फिर x² ने +1, यही होगा। तो प्लस, तो ये जो है टर्म, वो अपना फंक्शन आ गया। यहां तक पहले पूछते थे, यहाँ थोड़ा बढ़ा दिया,
बढ़ा दिया में क्या किया कि उसने दिया है कि f0 बराबर 0 ले लो और बाद में निकाल के दो वैल्यू ऑफ f ऑफ 1। तो आराम से, क्योंकि हमको c का ही ऑप्शन है, c अननोन है, इसीलिए उसने वो रिलेशन दिया है। तो मैंने लिखा गिवन दैट f ऑफ 0 बराबर 0, तो जहां x है 0 लिखो, तो f0 0 लिख दो। तो 0 बराबर देखो, पहला टर्म 0 जहां पे x पे जगह लिखो तो 0/1 होगा, अनडिफाइंड नहीं होता, नीचे 1 आता है। तो 0/1 का मतलब 0 प्लस c, यानी कि c की वैल्यू 0। अब c की जगह 0 0 ही लिख दो। तो एग्जैक्टली f क्या है, x⁻7 बाई 2x⁻7 प्लस x² + 1, और हमको निकालना है f ऑफ 1। तो जहां x दिखता है वहां 1 लिख दो, तो ऊपर 1 नीचे 2 + 1 + 1 એટલે 4, 1/4 इज द करेक्ट आंसर। बोलो कितना आसान है, सम सिंपल ही है, थोड़ा तो सोचना ही पड़ेगा। और इसी टाइप का सम बहुत टाइम नहीं लेता है, एक दो एग्जाम में आ ही जाता है, एक दो छोड़ के। तो ये ट्रिक याद रखो। देखो अब 36 नंबर का सम, पेज नंबर 29 पे है सर। हाँ हाँ, मैं बोलता हूँ, जरा गला भी रुकता है ना भाई, बहुत बोलता हूँ तो नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जरा देख लो, आप पढ़ लो पहले सम। हाँ सर। हाँ? हाँ। 36 नंबर, इफ इंटीग्रेशन 0 से π/3 tan थीटा अपॉन √2k sec थीटा d थीटा इक्वल्स टू 1 - 1/√2 where k पॉजिटिव, then what the value of k। बहुत आसान सम पूछा है, उसने अंदर के अननोन दे के बताया है, उसका आंसर 1 - 1/√2 आता है। तो के कितना होना चाहिए। JEE मेन 9th जनवरी 2019 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा है। हाँ, तो इसमें 0 से π/3 tan थीटा बाई √2 के sec थीटा d थीटा बराबर 1 - 1/√2 वो दिया है, वो ले लिया हमने। ये प्रूव नहीं करने का, 1 - 1/√2 दिया ही है, बट हमको निकालनी है के की वैल्यू, वहां के पॉजिटिव है। अच्छा, तो देखें बहुत आसान है, नीचे जो √2k sec थीटा है, इसमें से √2k को बाहर निकालो, कांस्टेंट है तो बाहर निकल सकता है। तो देयरफॉर 1/√2k मैंने लिख दिया। हाँ, 0 से π/3, अब tan थीटा को स्प्लिट किया sin थीटा बाई cos थीटा, अने रूट sec थीटा का मतलब sec थीटा का पावर हाफ। समझ गए होंगे आप। हाँ सर। अब देखो cos थीटा बगल में है और ये sec थीटा हाफ, sec थीटा हाफ का मतलब 1/cos थीटा टू द पावर हाफ है ना। तो वो cos थीटा के साथ प्रोडक्ट में कट हो जाएगा, cos रेस टू हाफ थीटा कट हो जाएगा, तो cos रेस टू हाफ थीटा बचेगा नीचे। नीचे बचेगा मतलब कि ऊपर cos थीटा का माइनस हाफ लिख सकते हैं, और cos का डेरिवेटिव sin थीटा है ही, माइनस sin थीटा है तो माइनस को सेट कर लेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि cos थीटा नीचे जो हाफ है वो ऊपर ले लिया, वो cos थीटा का माइनस हाफ एंड इनटू sin थीटा d थीटा बराबर राइट हैंड वाला तो वैसा का वैसा। अब हुआ क्या, वो माइनस sin थीटा सेट करने के लिए बाहर मैंने माइनस रख दिया, देखो -1/√2 के 0 से π/3 cos थीटा टू द पावर माइनस हाफ एंड माइनस sin थीटा हो, वो डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा है। तो यही फॉर्मूला करने जा रहा हूं मैं कि फंक्शन का कोई भी पावर हो, बगल में उसका डेरिवेटिव हो, तो फंक्शन का एक पावर इंक्रीज कर लो और वही पावर नीचे लिख दो डिनोमिनेटर में। ये cos थीटा का माइनस हाफ है, बगल में डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा ही है, तो उसका इंटीग्रेशन
कॉस थीटा माइनस हाफ में एक ऐड करो, 1 ऐड करोगे तो माइनस हाफ प्लस 1 का मतलब हाफ होगा, तो वो कॉस थीटा का प्लस हाफ हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हाफ आएगा। वही यस। पावर नीचे लिखना है 0 से π/3। हम्म और जो हाफ है वो बाहर निकाल दो, नीचे वाला हाफ, -2/√2 की। माइनस। अब हाँ, अब अपर लिमिट थीटा की जगह π/3 लिखो। cos π/3, cos π/3 हाफ। यस सर। 2 मिनट થોભો। हाँ सर। પ્રચાર ગાડી ફરે છે ને हाँ એટલે सर। અવાજ બધો આવે છે। ગયા થીટા આવે હવે। cos π/3 to the power half मतलब 1/2 to the power half એટલે 1/√2 प्लस cos 0 એટલે 1 એટલે 1/√2 -1 हो गया बराबर। यस सर। अब -1 अंदर ले लो तो क्या हो जाएगा, -1/√2 वो उधर भी है, राइट हैंड साइड में वही टर्म 1 -1/√2 हो जाएगी, वो कट से। तो लेफ्ट साइड में सिर्फ बचेगा 2/√2 की। हाँ, तो ऊपर 2 है, नीचे √2 एक कट कर दो तो √2/√k हो जाएगा कि नहीं। यस सर। √2/√k के बराबर 1, इसका मतलब √k बराबर √2, यानी के स्क्वायर करने से k बराबर 2। k equals to 2। हाँ, ये करेक्ट ऑप्शन ए हुआ। यस। हाँ, अब 37 नंबर का जो सम है टेढ़ा मेढ़ा है, जरा बराबर ध्यान से देख लो। लेट n ग्रेटर और इक्वल टू 2 बी अ नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर दिया है, 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2, मतलब के फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। देन इंटीग्रेशन करके जो दिया है टर्म बराबर ध्यान से देखो, पहला ब्रैकेट में साइन रेस टू पावर n थीटा माइनस साइन थीटा होल टू द पावर 1/n इंटू कॉस थीटा, एंड डिनोमिनेटर में साइन टू द पावर n प्लस 1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू व्हाट, आउट ऑफ ऑप्शन। वो JEE मेन 10th जनवरी का सम है 2019 का, शिफ्ट नंबर 1 में। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि यहाँ साइन रेस टू n थीटा माइनस साइन थीटा का पावर 1/n कॉस थीटा, एंड डिनोमिनेटर में भी साइन रेस टू n प्लस 1 थीटा है, बराबर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉस थीटा डी थीटा आप रिमूव कर सकते हैं वहां से। अगर साइन थीटा बराबर सपोज कर लिया कोई भी टर्म, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा आएगा कि नहीं। तो ये सम की तो बहुत इजी दिख रही है। तो सम हमने स्टार्ट कर दिया, पुट साइन थीटा बराबर टी करके, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा बराबर डी टी आएगा ना, है कि नहीं समझ में। अच्छा, तो वो अपना सम जो है उसका बराबर क्या होगा, जहां साइन थीटा है वहां टी लिखो, एंड कॉस थीटा डी थीटा की जगह डी टी। तो देखो टी रेस टू एन माइनस टी टू द पावर 1/n अपॉन टी रेस टू एन प्लस 1 डी टी, ऐसा हुआ, देख लो जरा ध्यान से। हाँ सर जो। हाँ, अब सोचने समझने की बात क्या है कि मैंने अपर वाली टर्म में से टी को निकाल दिया बाहर, टी कॉमन निकाला। अब हुआ क्या, टी को कॉमन निकालने से कि टी बाहर निकला है तो अंदर हो जाएगा, मैंने क्यों उलट सुलट लिख दिया, टी रेस टू एन वाली टर्म पीछे लिख दिया, तो माइनस साइन कहाँ चली गई। अच्छा, कोई भी है बात देख लो जरा, टी कॉमन निकालो तो टी रेस टू एन प्लस 1, शायद मैंने टी रेस टू एन कॉमन निकाला, यस यस तभी होगा ना ये। टी रेस टू एन बाहर निकाला, वो पावर 1/n है ना, इसीलिए बाहर तो आएगा तो टी ही हो जाएगा, टी नहीं निकाला, टी रेस टू एन निकाला है। हो
हो गया समझ में सबको? कहाँ गए पंकज, राय? ये दोनों की तो एब्सेंट रखनी ही पड़ेगी। आई आते जाते रहते और मन भावे तो चला भी जाते हैं, डांट पड़ेगी उसको स्कूल में से आज। साइन रेस टू एन थीटा माइनस साइन थीटा का पावर 1/n जो है ना, वहां मैंने टी रख दिया, तो टी रेस टू एन माइनस टी का पावर एंड डिनोमिनेटर में टी रेस टू एन प्लस 1 dt हुआ। अब हुआ क्या कि पहले जो ऊपर वाली टर्म है उसमें से टी रेस टू एन कॉमन निकाला। आयुषी समझ में आ रहा है ने? हाँ, तो उसका पावर 1/n है, इसीलिए टी बन गया बाहर। और अंडर क्या हुआ टी रेस टू एन कॉमन निकालने से? 1 माइनस टी बाई टी रेस टू एन होगा, तो वो ऊपर वाला टी का पावर नीचे ले लिया मैंने, टी रेस टू एन माइनस 1 ऐसा हुआ। हाँ, अब एक्चुअली टर्म क्या हुआ ब्रैकेट में? 1 माइनस 1 बाई टी रेस टू एन माइनस 1 का होल रेस टू 1/n, और बाहर जो टी है वो टी, और डिनोमिनेटर में जो टी रेस टू एन प्लस 1 है उसमें से टी एक कट कर लो तो 1 बाई टी रेस टू एन बचेगा। ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने कैसे लिखा है। नीचे टी रेस टू एन इंटू टी होगा क्या? नहीं, वो टी कट कर दो तो 1 बाई टी रेस टू एन रहेगा, ऐसा बोल रहा हूं मैं। हाँ, अब सपोज करते हैं और आगे 1 माइनस 1 बाई टी रेस टू एन माइनस 1 जो ब्रैकेट वाली टर्म है ना, उसकी वैल्यू मैंने x सपोज कर दी। तो अब डेरिवेटिव कैसे होगा? इसीलिए मैंने 1 माइनस टू नीचे जो n माइनस 1 है ऊपर में 1 माइनस n लिख सकता हूँ, ऊपर टर्म ले लिया मैंने बराबर x। यहाँ डेरिवेटिव नहीं किया है मैंने, सिर्फ नीचे वाली टर्म का पावर ऊपर लिखा। तो नीचे टी रेस टू एन माइनस 1 है तो ऊपर टी रेस टू 1 माइनस एन होगा। अब डेरिवेटिव दोनों साइड करे तो 1 का 0 माइनस साइन एज इट इज, 1 माइनस एन नीचे आएगा इंटू टी रेस टू 1 पावरलेस तो माइनस एन होगा, चेक कर लो, इंटू डी टी। अब वो टी रेस टू माइनस एन का मतलब 1 बाई टी रेस टू एन डी टी है, एंड वो जो माइनस ब्रैकेट करके 1 माइनस एन है वो n माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1, और दूसरी साइड पे डिवाइड करके लिख दो। देखो बराबर कंप्लीट हुआ क्या नहीं? हाँ, तो जो ब्रैकेट वाली टर्म उसको x सपोज करने से x रेस टू 1/n होगा, 1 बाई टी रेस टू एन डी टी की जगह 1 अपॉन n माइनस 1 dx आ गया, देख लो। तो 1 अपॉन n माइनस 1 बाहर निकल जाएगा, सिर्फ अंदर बचेगा x रेस टू 1/n। अभी x रेस टू 1/n का इंटीग्रेशन ही लिखना है, तो x रेस टू 1/n प्लस 1 अपॉन 1/n प्लस 1 ऐसा ही आता है। बाहर का सिंप्लीफाई वो नीचे वाला जो है ना, देखो 1/n प्लस 1 उसका सिंप्लीफाई 1 प्लस n अपॉन n होता है, अथवा तो n प्लस 1/n हुआ कि नहीं सेकंड वाला? n पावर डिनोमिनेटर वाला ऊपर चला गया और n प्लस 1 n माइनस 1 दोनों को जोड़ के n स्क्वायर माइनस 1 फॉर्मूला के हिसाब से बना दिया। और x टू द पावर 1/n प्लस 1 का मतलब n प्लस 1/n। अब सिर्फ x की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो x की जगह क्या सपोज किया था वो देख लो, 1 माइनस 1 बाई टी रेस टू एन माइनस 1 x की जगह लिख दिया, उस 1/n है। बाद में t की वैल्यू भी सपोज किया था साइन थीटा, तो वो साइन थीटा लिख दो। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो बहुत, हाँ, ये तो दिमाग में लाना ही पड़ेगा। 12:21 हो गई और 2 ही बच्चे बचे हैं मेरे ख्याल से, आयुषी और दूसरा कौन? राज। और राय और पंकज लेफ्ट कर गए शायद, हाफ घंटे से आगे नहीं दिख रहा है। हाँ, अभी यस सर लिखा, जब बोलता हूं तब नहीं लिखता है राज। चलो कोई बात नहीं। तो पंकज एंड राय नहीं है। अब देखो 31 पेज पे वहां अपना एक और सम आ गया 38 नंबर वाला। ये सभी सम एक दूसरे से क्या है, चेंजेस होता है। हर एक सम में नई नई ट्रिक होती है भाई, आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। यही सम आपको एक दफे और घर पे देख लेना चाहिए, खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए। यही सम लेके आपको आंसर
अपने खुद हिसाब से लिखना चाहिए। जब समझ में आ गया होगा तो आप लिख सकोगे। हम्म। चेक करोगे ना तो पता चलेगा कि भाई क्या होता है, कहाँ पे भूल होती है। वो तो करना ही पड़ता है, जब एक्सपर्ट बनना है तो ये काम करना ही पड़ेगा आपको। हम लोग भी हर वक्त सम गिनते रहते हैं ना, तभी इतनी मास्टरी आती है, ऐसा नहीं आ जाती है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको भी बार बार करना पड़ेगा। और हर एक सब्जेक्ट में, आपके पास तो 3 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, तीनों में आपको वर्क होता है, तो आपको तो ज्यादा ही वर्क करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहो। अब 38 सम नंबर देख लेते हैं। लेट आई बराबर है ना, आपके पास मोबाइल में तो दिख रहा है ना आयुषी? हाँ सर कीधું हाँ हाँ સંભળાતું હા ના, અહીંયા આવતા વાર લાગે, અવાજ પાછો આમની અંદર પેલા એ હોય ને નેટવર્કમાં હા ડિફેક્ટ હોય. હું બોલું તે તમને મોડેથી સંભળાય, તમારું બોલે તો મને મોડેથી જરાક સંભળાય, એવું છે ભાઈ. કઈ વાંધો નહીં. I બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન a to b x raised to 4 minus 2x square dx ये दिया गया है. इफ I is minimum, अगर I minimum हो तो then the order pair a b is what, એટલે કે a and b जो नंबर दिया है ना इंटीग्रेशन लिमिट में, वो कौन सा नंबर होगा, ए और बी किस टाइप की लिमिट होगी, ये 4 ऑप्शन में से कौन सी ट्रू है. तो वो पूछा गया है JEE मेन 10th जनवरी 2019 में शिफ्ट नंबर 1 में. तो ये इसमें करने का कुछ नहीं है, आपको I बराबर दिया गया है इंटीग्रेशन a to b x raised to 4 minus 2x square dx. तो हम फंक्शन को ही पकड़ ले. फंक्शन कौन सा है, तो क्या x raised to 4 minus 2x square. अगर इसकी बात सोचे तो क्या होता है, x स्क्वायर कॉमन आएगा, देख लो. हाँ, फिर अंडर बचेगा x स्क्वायर माइनस 2, उसका 2 फैक्टर निकाल दो, एक x माइनस रूट 2, एक x प्लस रूट 2 होगा, है ना. अच्छा, तो इसमें क्या होगा, अगर ये x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 होगा, तो इसको हम क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, इक्वल टू 0 करके निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट. देखो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, एफ एक्स कब 0 होगा, तो ये 3 फैक्टर्स में कोई भी 0 होगा तो 0 होगा, उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं. तो एक्स स्क्वायर 0 होगा जब x 0, फिर सेकंड फैक्टर कब 0 होगा, जब x बराबर रूट 2, एंड थर्ड फैक्टर कब 0 होगा, x बराबर माइनस रूट 2. तो ये 3 वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट आ गई, तो वो मैंने रियल लाइन पे ड्रॉ करके बता दिया. पहला आएगा नेगेटिव वाला नंबर माइनस रूट 2, बाद में 0 एंड बाद में रूट 2. फिर इसी टाइप का वो कर्व ड्रॉ करते हैं, ऊपर से नीचे आएगा प्लस माइनस, फिर ऊपर जाते हैं, लेकिन यहाँ x का पावर इवन है, x स्क्वायर है, जो क्रिटिकल पॉइंट उसका 0 है वो स्क्वायर है, तो रिपीट होगा 0 के बाद, इसलिए इसीलिए ऊपर से आया 0 के अगर मिला, फिर 0 से नीचे ही चालू हुआ, देखो नीचे आके दोनों नीचे ही आएगा, और बाद में रूट माइनस रूट के साथ ऊपर चला जाएगा. अगर उसका भी स्क्वायर होता है x माइनस रूट एक्स प्लस रूट 2 का स्क्वायर, तो फिर से वो नीचे चला जाता है, ऐसा ये रूल. तो कोई भी है, लेकिन वी सी दैट माइनस रूट 2 के रूट में जो कोई भी x लेगा तो वो नेगेटिव आएगी. इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज नेगेटिव, एंड सो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ i, मिनिमम नेगेटिव मिनिमम ही बोला जाएगा, तो a एंड b नेगेटिव रूट 2 टू प्लस रूट 2 ही लिया जाएगी. समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो फंक्शन जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम. तो मिनिमम कब आएगी, जब नेगेटिव अंदर आ जाएगा, तो नेगेटिव नंबर ही मिनिमम बोला जाता है. रूट 2 के आगे जाओगे तो प्लस आता है, रूट माइनस रूट 2 के भी नीचे जाओ तो प्लस आएगी, ऊपर जाता है तो कर्व. तो इसीलिए माइनस रूट 2 के से रूट 2 तक उसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी फंक्शन की. ये बता रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स नेगेटिव होगा इन बिटवीन दिस टू लिमिट, एंड उसी टाइम पे वो मिनिमम वैल्यू ऑफ आई मिलेगी. तो ये माइनस रूट 2 एंड बी प्लस रूट 2, ऐसा उसका सॉल्यूशन हुआ.
Yes. देखा बराबर ध्यान से समझिए आप लोग। आया समझ में भाई? अभी तो मेरा भी गला दुखने लग गया, तो मैं क्या करूं, यहाँ तो रुक जाता हूँ 38। दो एक बात कर लेता हूँ जो जरूरी है आप लोगों के लिए। देखो अगले हफ्ते से 2 हफ्ते तक हाँ हम लोग रिवीजन करेंगे। एग्जाम आ